Hey guys, this is Alnagi Khan and you are watching The Literature Man. Today, we will summarize a tragic play Dr. Faustus by Christopher Marlowe, an English poet and painter lived from 1564 to 1593. Dr. Faustus is an Elizabethan tragedy that was first performed in 1588 and published in 1604 under the name of The Tragical History of Life and Death of Dr. Faustus. But now it is simply known as Dr. Faustus. The play speaks about sin, redemption, and damnation. It also speaks about good and evil, knowledge and ignorance, pride and power. The play is set in Europe in late 1580s, the same time period in which it was written. The symbol of blood and good and bad angels are used throughout the play. So let's summarize the main plot and character analysis of the play. Dr. Faustus. First of all, I will introduce you the famous characters of the play, starting with the main character, Dr. Faustus, a brilliant man who is the protagonist of the play. Faustus is a German scholar of early 16th century who lives in Wittenberg, Germany. He is arrogant, fiery, and has a thirst for knowledge. नॉलेज और पावर के गेन के लिए मजीद 24 साल जिंदा रहने के एवज फोस्टस शैतान यानी डेविल को अपनी रूह बेच देता है। मीन वो अपनी रूह का सौदा करता है 24 साल के एवज। He is also skilled in medical and astrology, but for the sake of black magic and power, Foster decides to sell his soul to the devil. It shows that Faustus is attracted towards evil. He is also considered as autobiographical character of Marlowe. ऑटोबायोग्राफिकल करैक्टर वो होता है जिसके ज़रिए ऑथर या राइटर अपनी ज़ाती लाइफ के कुछ इवेंट्स या ट्रेट्स को पोर्ट्रेट करता है। सादा लफ्ज़ों में ये कि डॉक्टर फोस्टस के करैक्टर में कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की अपनी लाइफ से बिलोंग करती हैं। द सेकंड मेन करैक्टर इज लूसीफर. Lucifer is sometimes thought to be another name of Satan. It is said that Lucifer was Satan's name before the fall. इबलीस जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंके जाने से पहले शैतान यानी सैटन का दूसरा नाम लूसीफर था. Lucifer appears in a few moments in play Dr. Faustus. Mephistopheles. His name means destroyed and liar. Mephistopheles is considered as the devil of craft and cunning. मकारी और चालाकी में माहिर शैतान. He is the devil who comes at Faustus' summon. उसकी Faustus की पुकार पर आता है. And serves him for 24 years. Mephistopheles is participating at every level in Faustus' destruction. Not only does he get Faustus to sell his soul, he also encourages Faustus to waste his 24 years of power. Another character, Beelzebub, is also one of Lucifer's officers. He is a powerful demon, Badru. Wagner. Wagner is a servant to Faustus. He steals Faustus' books and learns how to call demons, यानी बदरूहों को कैसे बुलाना है. The Scholars. These are friends of Faustus at Wittenberg. They appear at very start and then at the end of the play. और Faustus की एंड पर हालत देखकर इन्हें बहुत अफसोस होता है. Wades and Cornelius are friends to Faustus. They teach him the dark arts. They appear only in Act 1. Clown is a servant of Wagner
and he provides comic relief in the play. Robin is an innkeeper who takes care of horses at inn. अस्तबल में लोगों के घोड़ों की देखभाल करता है. This character also provides comic relief in the play. इसको प्ले में डिक के नाम से भी मेंशन किया गया है. He learns some basic magic through Faustus books. Raffe is Robin's friend who also learns some magic with Robin. इन माइनर कैरेक्टर्स का मैजिक सीखना ये बात इंडिकेट करता है कि एक छोटा सा कामिल इंसान भी ब्लैक मैजिक सीख सकता है, और फोस्टस ने ये काम करके अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया नहीं, कम कर लिया है. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज हॉर्स कोर्सर. दिस इज अ ट्रेडर हु बाइज हॉर्स फ्रॉम फोस्टस. मगर हॉर्स खरीदने के बाद जब वो इस पर सवार होकर पानी वाली जगह से गुजरता है तो हॉर्स गायब हो जाता है. इन कैरेक्टर्स के अलावा चंद एक माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि द पोप हु इज़ द हेड ऑफ कैथोलिक चर्च, द नाइट हु इज़ एन एम्पायर इन द कोर्ट, ब्रूनो इज़ अ कैंडिडेट ऑफ अपोजिशन कैप्चर्ड बाय पोप, बट फोस्टस इस कैदी को आज़ाद करवा देता है अपने मैजिक से. मार्टिनो, फ्रेडरिक and Duke of Venholt are also some characters in the play. Besides all these characters, Good Angel and Evil Angel are used as personifications of Faustus' inner complications. Faustus के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको जाहिर करने के लिए गुड एंजल और इवल एंजल का कैरेक्टर यूज किया गया है. 7 deadly sins that appear one by one in front of Faustus are also used as personifications. And last but not the least, an old man. A holy old man, he tries to save Faustus from evil. Faustus initially thanks him, but later Faustus sends devils to harm that old man. ये बात है उन दिनों की जब चर्च की बेजा ताकत के इस्तेमाल और करप्शन से तंग आकर मार्टिन लूथर की क़ियादत में लोगों ने चर्च की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बर्पा कर दिया. इट इज़ नोन एज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. डॉक्टर फोस्टस भी इसी बैकग्राउंड में, इसी पस मंज़र में लिखा गया है. So guys, play opens when the chorus appears at the stage and tell us that poet has not any purpose to sing about battlefields and wars, not about players of love, and not even about adventures of great heroes. इस ड्रामा को परफॉर्म करने का मकसद ना ही जंगों का तज़किरा करना है और ना ही किसी प्यार की कहानी का और ना ही हीरोज़ के बड़े बड़े कारनामों का तज़किरा, बल्कि the only purpose of presenting this drama is to depict the life of and chains of fate and fortune of Dr. Faustus and good and evil fortunes of Faustus. इसके बाद कोरस फोस्टस के बचपन से लेकर अब तक की कहानी सुनाते हैं. They tell that Faustus was born in Germany in a town called Rhodes. His parents were of meek origin. मतलब सादालू, humble और gentle लोग थे. When Faustus was grown up, he was sent to the University of Wittenberg. Very soon he made great development in the study of theology, diniyat, यानी about religion and God. He got a doctorate degree in theology. He started feeling proud at his knowledge. Chorus adds that Faustus looks like Icarus. Icarus ग्रीक्स में एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जो अपने सॉफ्ट और नाजुक परों से उड़ते उड़ते इतनी बुलंदी पर पहुंच गया था कि सूरज की तपिश से उसके पर जल गए और वो नीचे समंदर में आ गिरा. सो कोरस से दैट फोस्टस का नॉलेज ही उसे ले डूबेगा. नाउ फोस्टस हिमसेल्फ अपीयर्स ऑन द स्टेज. ये फोस्टस की
पहली सोलिलोकी है। सोलिलोक्वी यानी वो अपने आप से हम कलाम है, खुद में बातें कर रहा है। वो अपनी स्टडी में बिजी है और खुद से कहता है कि तुमने अब डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है, मगर खुद को थियोलॉजी तक महदूद रखना ही काफ़ी नहीं। तुम्हें नॉलेज की मज़ीद गहराई में जाना होगा, वहाँ जहाँ सारे अलूम तुम्हें मिल जाएं। तुम्हें अरिस्टोटल के वर्क्स को पढ़ना होगा। यू आर ऑलरेडी स्किल्ड इन योर सब्जेक्ट, मगर फोस्टस की जहानत और भी डिमांड करती है। तुम्हें मेडिकल का इल्म सीखना होगा, तुम्हें फ़िलोसफी सीखनी चाहिए। एक्चुअली Faustus is confused in choosing the subject. After fully concentrating all the branches of knowledge, the study of theology seems to be the best choice. वो सोचता है कि मुझे इसी को इन्हेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। फिर फाइनली वो फैसला करता है कि अब वो ब्लैक मैजिक सीखेगा ताकि नॉलेज के साथ साथ पावर भी गेन कर सके। नाउ फोस्टस अपने सर्वेंट वैगनर को बुलाता है और उसे कहता है कि दो फेमस मैजिशियंस वेड्स और कॉर्निलस को बुला कर लाए ताकि फोस्टस उनसे ब्लैक मैजिक सीखने के हवाले से एडवाइसेस ले सके। वैगनर के जाने के बाद फोस्टस फिर से अकेला हो जाता है और उसके पास एक गुड एंजल अपीयर होती है। गुड एंजल उसे कहता है कि फोस्टस राह हिदायत पर लौट आओ, काले जादू के चक्रों में मत पड़ो, इन चक्रों में पढ़कर खुदा की नाराजगी मूल मत लो। इसी के साथ एक इवल एंजल अपीयर होता है जो कहता है कि नहीं फोस्टस, तुम्हें इस जादू के इल्म की गहराई तक जाना चाहिए, तुम्हें तमाम दुनिया के खजाने यहीं मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एंजल्स गायब हो जाते हैं। एक्चुअली ये गुड एंजल और इवल एंजल फोस्टस के अपने ही ज़मीर की आवाज़ होती है। इसके बाद वैगनर वेड्स और कॉर्निलस को लेकर आता है। वो फोस्टस को इनकरेज करते हैं कि उसे कुछ बुक्स बताते हैं जो उसे पढ़नी चाहिए एंड इसके बाद वो सब डिनर करते हैं। इतने में बाहर दो स्कॉलर्स आते हैं जो फोस्टस के यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते हैं। वो फोस्टस से मिलना चाहते हैं मगर वैगनर उनसे कहता है कि वो वेड्स और कॉर्निलस के साथ है और रियल नॉलेज गेन कर रहा है, द ब्लैक आर्ट। यहाँ वैगनर अपने लहजे से एक कॉमिक एलिमेंट भी पेश करता है। दोनों स्कॉलर्स को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि अब फोस्टस ब्लैक मैजिक सीख रहा है। वो इस बात का जिक्र करने अपने मास्टर के पास चले जाते हैं कि शायद वो फोस्टस को बचा पाए। इधर रात के वक्त फोस्टस एक दायरा लगाता है और कुछ ऐसे साइंस बनाता है जिनसे बदरूहों को बुलाया जा सके। वो पुकार पुकार कर कहता है कि मैं गोट की राह को छोड़ता हूँ और ऐ पानी, हवा और आग की बदरूहों तुम्हें वेलकम करता हूँ। मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। इतने में एक डेविल मेफिस्टोफलीस वहाँ जाहिर होता है कि हाँ बताओ मुझे क्यों बुलाया। फोस्टस उसे कहता है कि तुम्हारा हुलिया कितना गंदा और अगली है, जाओ जाके किसी दरवेश जैसा मासूमाना हुलिया बनाकर फिर मेरे सामने आओ। वैसे भी ऐसा ही हुलिया तुम डेविल्स पर ज़्यादा सूट करता है। यहाँ क्रिस्टोफर मार्लो ने फोस्टस के ज़रिए अपने टाइम के पादरियों और स्कॉलर्स पर क्रिटिसाइज भी किया है कि इन नेक चेहरों के पीछे अक्सर शैतान छुपा होता है। खैर अब मेफिस्टोफलीस चला जाता है और अपना गेटअप चेंज करके वापस आता है। नाउ मेफिस्टोफलीस आस्क्स फोस्टस कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने कहा कि तुम अपनी रूह खुदा यानी गॉड को छोड़कर हम डेविल्स को देना चाहते हो। जबकि फोस्टस मेफिस्टोफलीस को आंसर करने की बजाय उसी से सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारा बॉस कौन है। मेफिस्टोफलीस आंसर्स दैट लूसीफर इज माय मास्टर। फोस्टस फिर से क्वेश्चन करता है कि लूसीफर कौन है। मेफिस्टोफलीस टेल्स दैट लूसीफर वाज एन एंजल बिफोर। वो फरिश्तों से भी बढ़कर था, मगर उसके तकब्बुर और अना की वजह से गॉड ने उसे और उसके साथियों को हेवन से निकाल कर हेल यानी जहन्नुम में भेज दिया, वहां फेंक दिया। मोर ओवर मेफिस्टोफलीस सेज प्लीज स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई एम नॉट हेयर टू ओबे यू। मैं जस्ट लूसीफर की बात मानता हूँ। इस पर फोस्टस उसे कहता है कि अच्छा तो फिर जाओ लूसीफर के पास एंड टेल हिम दैट आई डॉक्टर फोस्टस नीड्स हेल्प फ्रॉम लूसीफर।
मे आई यूज योर सर्विसेज फॉर नेक्स्ट 24 years? क्या तुम अगले 24 साल मुझे अपनी खिदमात से नवाजोगे? मेफिस्टोफेलिस कहता है कि ही विल आस्क लूसीफर अबाउट इट। नाउ मेफिस्टोफेलिस डिसअपीयर। इसके बाद प्ले में वैगनर और क्लाउन की कन्वर्सेशन दिखाई देती है जो कि एक लो कॉमेडी है। मतलब एक ट्रेजिक प्ले में हमें वैगनर और क्लाउन फजूल और बेजा किस्म की कॉमेडी करते दिखाई देते हैं, और फिर वैगनर जो कि फॉस्टस की ही कुछ बुक्स चुरा कर मैजिक सीख रहा है, वो क्लाउन को अपना सर्वेंट बना लेता है। इससे ये जाहिर होता है कि ब्लैक मैजिक सीखने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज या फॉस्टस की तरह स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो वैगनर की तरह का एक बंदा भी सीख सकता है जो कि खुद फॉस्टस का सर्वेंट है। आफ्टर दिस अगेन फॉस्टस की सोलिडिटी दिखाई गई है। वो यही सोच ही रहा होता है कि क्या जो वो कर रहा है ये सही है या गलत। कितने में फिर से गुड एंजल और इवल एंजल वहां आते हैं। गुड एंजल फॉस्टस से कहता है कि फॉस्टस अभी भी वक्त है, रिपेंट कर लो, गॉड से माफी मांग लो और वापस लौट आओ, हेवन के बारे में सोचो। मगर बैड एंजल कहता है कि नहीं फॉस्टस, अब बहुत देर हो चुकी है, ऐसा करके तुम गॉड और लूसीफर दोनों की नाराजगी मूल लोगे, इसलिए बेहतर है कि पावर और वेल्थ के बारे में सोचो। देन बोथ ऑफ देम डिस्पेयर एंड फॉस्टस सेज ऑफ वेल्थ, मतलब दौलत के बारे में सोचना इज बेटर देन थिंक अबाउट हेवन। यहाँ फॉस्टस की फ्री विल दिखाई गई है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। He again calls for Mephistopheles. Mephistopheles appear and tells Faustus that Lucifer will help Faustus. Mephistopheles will be Faustus' servant for next 24 years. But in return, Faustus को 24 साल के बाद अपनी रूह लूसीफर को देनी होगी। Faustus asks, लूसीफर मेरी सोल लेकर क्या करेगा? Mephistopheles answers that लूसीफर चाहता है कि जिस तरह वो सफ़र कर रहा है हेल में बाकी लोग भी सफ़र करें और उसका दर्द समझें, इसलिए वो ह्यूमंस की रूहें इकट्ठी करके अपनी एक किंगडम बना रहा है। फॉस्टस क्वेश्चंस, क्या तुम्हें भी तकलीफ होती है? मेफिस्टोफेलिस टेल्स दैट हाँ, उतनी ही जितनी के इंसानों को। जिस तकलीफ में हम डेविल्स हैं उसमें दूसरों को देखकर हमें मज़ा आता है। नाउ टेल मी, would you like to sell your soul to Lucifer for my services? Faustus agrees. मेफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि देन तुम्हें एक एग्रीमेंट अपने ब्लड से साइन करना पड़ेगा। फॉस्टस इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए अपनी आर्म पर कट लगाता है, मगर उसका ब्लड फौरन से जम जाता है, जो एक इशारा होता है कि किस्मत यानी फेट फॉस्टस को ऐसा करने से रोकना चाहती है। मगर फॉस्टस अगेन अपनी फ्री विल का यूज़ करते हुए आगे बढ़ता है। मेफिस्टोफेलिस उसका ब्लड मेल्ट करता है और फॉस्टस वो एग्रीमेंट साइन करता है। अब ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद फॉस्टस की अपनी आर्म पर नज़र पड़ती है तो उस पर लिखा हुआ होता है, ओह मैन फ्लाई अवे, दूर उड़ जाओ। इस पर फॉस्टस कुछ परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों, जिस पर फॉस्टस का दिल बहलाने के लिए मेफिस्टोफेलिस चंद डेविल्स को लेकर वहां आता है, जो फॉस्टस को मुबारकबाद देते हैं कि उसने सही फैसला किया। और फिर वो डेविल्स एक डांस टाइप शो परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। अब फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से सवाल पूछने शुरू करता है, क्या तुम एग्रीमेंट की शराइत के मुताबिक मुझे सर्व करते रहोगे? जी हाँ, मैं दोज़ख और अपने अजीम लीडर लूसीफर की कसम खाता हूँ कि ऐसा ही होगा। All right, then tell me, what is hell? Where is it exactly located? Mephistopheles answer, hell is just under the heaven, but there is no fixed boundaries of hell. Hell is everywhere. हम जहाँ जाते हैं वहाँ जहन्नुम होती है। Hell is just a frame of mind. Faustus says, I don't believe in hell and life or pain after death. In short, Faustus demands a beautiful wife from Mephistopheles. Mephistopheles जाकर के एक लेडी डेविल को ले आता है। Faustus rejects by saying, curse upon her, लानत भेजो इस पर।
मेफिस्टोफेलिस बताता है कि वो शादी जैसे नेक काम में फोस्टस की हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, मगर ये लो, ये किताब, इसे पढ़ो और तुम इतना मैजिक सीख जाओगे कि दुनिया की किसी भी लेडी से लुत्फानंदोज हो सकोगे। मजीद इस बुक से तुम हर तरह का नॉलेज हासिल कर सकते हो जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो। इन नेक्स्ट सीन, फोस्टस सेज टू मेफिस्टोफेलिस दैट मैं जब भी आसमान की तरफ देखता हूं मुझे पछतावा होता है, मैं शर्मिंदा हूं। आह मेफिस्टोफेलिस, आह, आई कर्स यू। मेफिस्टोफेलिस आंसर्स, बट वाई डू यू थिंक ऑफ हेवन फोस्टस? तुम्हें सिर्फ हेल के बारे में सोचना चाहिए। गुड एंजल अपेयर्स एंड सेज, फोस्टस, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो अभी भी देर नहीं हुई, तौबा कर लो और खुदा तुम्हें माफ कर देगा। इवल एंजल सेज, नो फोस्टस, अब तुम एक स्पिरिट बन चुके हो और खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। Faustus feels that someone is uttering these lines into his ears. Now, Faustus मेफिस्टोफेलिस से यूनिवर्स के बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देता है। कितने प्लैनेट्स हैं? एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है, एटसेट्रा। एंड एट द एंड ही आस्क्स, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स? मेफिस्टोफेलिस मेंशंस दैट ही विल नॉट आंसर इट। मुझे बताओ मेफिस्टोफेलिस, हमने एग्रीमेंट में तय किया था कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। हाँ, दूंगा, मगर इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये हेल के लॉज के अगेंस्ट है, हमारे कवानीन के खिलाफ है। आह, यू डैम्ड स्पिरिट, यू रास्कल, इट्स टू लेट टू रिग्रेट। इवल एंजल सेज, यस, इट्स टू लेट। गुड एंजल सेज, it can't be too late if Faustus can still sorry and regret. बैड एंजल कहता है कि डेविल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुड एंजल कहता है कि अगर तुम गॉड से सॉरी कर लो तो डेविल्स की क्या मजाल के तुम्हें छू जाएं। द एंजल्स लीव। Faustus prays, oh Christ, my savior, protect the tortured soul of Faustus. Enters Lucifer with another devil, Beelzebub. Christ can't save your soul because it is only in my powers. I am Lucifer, the devil. Just come here to tell you that you are hurting me. Please don't call Christ. You should only think of devils. मुझे माफ कर दो लूसीफर, मैं अब गॉड के बारे में या हेवन के बारे में या उससे रिलेटेड कुछ नहीं सोचूंगा, फोस्टस कहता है। फिर लूसीफर फोस्टस को 7 डेडली सिंस का एक शो दिखाता है जिसमें हर एक सिन यानी गुनाह सामने आकर अपने बारे में बताता है कि वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स प्राइड, गरूर, तकब्बुर। सेकंड नंबर पर सामने आता है कोविटियसनेस, लालच, ग्रीड। एंड द थर्ड इज इनवे, जेलसी, हसद। फोर्थ नंबर पर रैथ, गुस्सा, एंजर। फिफ्थ नंबर पर सामने आता है ग्लटनी, पेटू यानी ज्यादा खाने वाला। सिक्स्थ नंबर पर स्लोथ, सुस्ती, लेजीनेस। एंड एट द एंड लेचरी, लस्टफुलनेस, सेक्सुअल डिजायर। इस शो से फोस्टस काफी अपील होता है, खुश होता है एंड देन ही डिमांड्स टू सी हेल। लूसीफर उससे वादा करता है कि वो रात में उसे ले जाएगा और फिर वो उसे पढ़ने के लिए एक बुक देता है और चला जाता है। फेयरवेल ग्रेट लूसीफर। नेक्स्ट सीन में कोरस सामने आकर फोस्टस के मुख्तलिफ सफरनामों के बारे में बताता है। सबसे पहले फोस्टस ने रोम में पोप के कोर्ट में गया और वहाँ इनविजिबल होकर उसे काफ़ी परेशान किया। देन फोस्टस कोर्ट ऑफ यूरोप में गया और वहाँ चार्ल्स V से मिला और अपने मैजिक के ज़रिए उसे यानी चार्ल्स V को अलेक्जेंडर ग्रेट से मिलवाया। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड क्लाउन, जो कि वैगनर का सर्वेंट था, क्लाउन के हाथ फोस्टस की एक मैजिक बुक आ जाती है और क्लाउन, रेफे, वैगनर और रॉबिन ये सब ऊट पटांग किस्म के जादू करते हैं
जो कि प्ले में एक लो कॉमेडी दिखाई गई है। यानी कि इस तरह की लो कॉमेडी जो पहले भी एक बार यूज़ हुई और अब फिर यूज़ हो रही है, ये प्ले के प्लॉट को लूज़ कर देती है। इससे जाहिर होता है कि इस प्ले का प्लॉट लूज़ प्लॉट है। इस तरह फोस्टस इसके बाद एक ताजिर को हॉर्स बेचता है, मगर जब वो ट्रेडर हॉर्स कोर्सर हॉर्स लेकर जा रहा होता है तो पानी पर से गुजरते वक्त उसका ये घोड़ा गायब हो जाता है और वो गिर जाता है। इस तरह फोस्टस को कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट में इनवाइट किया जाता है, जहां ये सब को अम्यूज़ कर रहा होता है अपने मैजिक के ज़रिए। इतने में रैफे उन तमाम लोगों को लेकर वहां आ जाता है जो कभी ना कभी फोस्टस के मैजिक का विक्टिम रहे होते हैं। फोस्टस अपने मैजिक से उन सब को गायब करके वापस अपने अपने रास्तों में भेज देता है। एंड फ्रेंड्स, here are Foster's 24 years of agreement about to complete. अब इन आखिरी लम्हात में फोस्टस मेफिस्टोफेलिस से डिमांड करता है कि उसके लिए हेलन ऑफ ट्रॉय को लेकर आए। हेलन ऑफ ट्रॉय इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जिसके लिए 10 साल तक वॉर ऑफ ट्रॉय होती रही। अगर आपने एगामेम्नॉन की स्टोरी पढ़ी है तो आप बेहतर जानते होंगे कि हेलन कौन है, और अगर नहीं पढ़ी तो मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो लेक्चर मौजूद है एगामेम्नॉन पर, जिसे देखने से आप पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि हेलन कौन थी। खैर, फोस्टस हेलन की डिमांड करता है। यहाँ एक ओल्ड मैन आकर फोस्टस को फिर से लास्ट टाइम समझाता है कि रिपेंट कर लो, माफ़ी मांग लो, मगर फोस्टस नहीं समझता। और फाइनली मेफिस्टोफेलिस हेलन को ले आता है। फोस्टस उसे देखकर खुश होता है। आफ्टर दैट फोस्टस के फ्रेंड्स स्कॉलर्स उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं, मगर ये उन्हें बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो अफसोस करते हैं और इस पर उसके लिए दुआ करते हैं। एंड फाइनली लास्ट डे ऑफ फोस्टस एग्रीमेंट कम्स एंड दिस विल बी द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। ही बेग्स फॉर मर्सी, वो रहम की भीख मांगता है, मगर इट्स टू लेट। डेविल्स एंटर एट मिडनाइट। Faustus cries, ugly hell, gape not, come not, Lucifer, I will burn my books. Ah, Mephistopheles, ah. और यूं डेविल्स उसकी सोल को ले जाते हैं, और सुबह स्कॉलर्स वहाँ फोस्टस की डेड बॉडी देखते हैं और उसकी तदफीन का इंतज़ाम करते हैं। एट द एंड, Chorus appear at the stage and tells that Faustus is now gone. One should never go deep into things not allowed by heavenly powers or God. So guys, take care, bye bye, see you in the next video. Allah Hafiz.